Good afternoon, sir. हेलो गुड आफ्टरनून सर। सर आप हाँ एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं म्यूट पे करता हूँ फोन। मैं घर पे पहुंच जाऊंगा अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड प- सर, आराम से सर, कोई हाँ टेंशन मत 15-20। लीजिए। हाँ 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। ओके सर, हाँ अंडरस्टूड। हाँ। गुड आफ्टरनून मैम। Good जय afternoon. जिनेन्द्र। Jai Jin. Section 1 talks about, ma'am, keyword. Sir, it is about it is applicable to territory of India, and rules are made by central Government central government. and act prepared by Parliament. Parliament. Yeah. Section 2 about definition. Definitions. Invention की definition. Sir, no forms for section 2, sir. Invention की definition. Invention की definitions capable inventive step plus capable of industrial application. And inventive step की definition. Economically significant, technical advance, Or technical both. or both. Non-obvious in And the non-obvious to the person to skilled the in the art. person. Yeah. Section 3 not an. Not an invention. 3A. Sir, 3A is frivolous natural laws against D. nature. Sir, D. section B is prejudice. It is C. harmful. C is mere discovery. D. D is for known no, that is E. New use of a known substance. Known substance, efficacy. Efficacy. E. E is for admixture, sir. F. F is for rearrangement, mere G. rearrangement. Sir, E is for admixture. Admixture. E is admixture. F for Yeah, rearrangement. F is You for, said yeah. correctly. Yeah. G. G is omitted. H is for horticulture and agriculture. GH. I is for instrument. But what is not patentable in I? What is not patentable, sir? In I ground? Surgeries. Method of treatment. Okay. Method of treatment, yes. J. J is for plant and animals related to them or not. What is patentable in J? Microorganism which is lab grown, synthetically modified or lab grown, genetically modified. K. K is for mathematical method, business models and computer per se. L. L is for literary works or artistry works. L and presentation of information. M. Mental act. Mental acts are method of mental act, playing games. N. Presentation. O is for topography. P. Of integrated circuit. P is for TKDL. properties, sir. TKDL. Traditional TKDL, Knowledge traditional Digital properties. Library. Yes, sir. Section 4 about
Invention related to atomic energy is not patentable. 5, 5 is omitted. 6. Person entitled to file patent. कौन होते हैं वो? Sir, true and first inventor, assignee, legal representative. Then सर उसमें भी अपने लिखा है कि alone or jointly. और और कौन हम कर सकते हैं? reciprocity, section 134. Section 7 talks about Section 7 forms of application. Sir, section 6 form 1 sir, 1600 rupees. जी. Section 7 Forms of application. Sir, one invention per application. फिर PCT route. सर उसमें ट्रिप्लिकेट कॉपी का भी आता है सर. देन रूल नंबर 10 में क्या मेंशन है? हाँ, रूल नंबर 10. क्या है उसमें? सर रूल नंबर 10 is all about proof of right. And Section 6 months, within 6 months we have to form the proof of right. ठीक. Section 8 Section 8 statement and undertaking of foreign application sir. form number Form number 3, no fee. And it is mandatory to submit. timeline सर बिफोर द ग्रांट वी हैव टू सबमिट. अगर कंट्रोलर ने बोला तो 2 months और एल्स 3 months. सर इफ कंट्रोलर एडवाइस देन 2 months, अदरवाइज डेट ऑफ फाइलिंग से डेट ऑफ फाइलिंग 6 months. Date of filing is 6 months. Then 3 points we wrote. फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट से फर्स्ट एग्जामिनेशन. कल भी मैं यहीं पे अटकी थी सर. फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में पूछा गया, then it is 3 months. When controller asked, then it is 2 months. and this all guidelines can be extended by They all can be extended by 1 month. 3 months, up to 3 months by filing form number 4. And यहाँ पे इसका फीस अलग है एक्सटेंशन का. 2000 rupees per month. 2000 rupees per month. There are 3 extension fees which we discussed yesterday. And rule number 19 and 19C. 19C टाइमलाइन एसोसिएटेड वो ऊपर आती है मैडम, ये आता है यहाँ पर. ओके, गलत बोला सर. 19C में क्या टाइमलाइन है मैडम? ट्रिप्लिकेट कॉपी का नहीं. हाँ, 19C में टाइमलाइन क्या है? ट्रिप्लिकेट कॉपी हो गई, हिंदी और इंग्लिश में फाइल कर सकते हैं 19 से. 19C में ISR की टाइमलाइन. वो 9 months and 3 months sir. whichever is later. 9 months कहाँ से और 3 months कहाँ से? 9 months from the date of filing. And 3 months. 3 months. 3 months. Sir, can you open and see sir? हाँ मैडम कर लीजिए, ये डेली बेसिस पे होगा, आपके दिमाग में छप ही जाएगा. सॉरी सर, एक्चुअली आज मैं रिवाइज नहीं कर पाई. आज आपने रिवाइज भी नहीं किया है, कल का वीडियो भी नहीं देखा है. नहीं सर, कल मैंने कुछ भी नहीं किया सर, क्योंकि थोड़ा अटक गई थी सर. बच्चों को थोड़ा कुछ काम था उनसे. तभी होता है मैडम, वरना आप 2:15 होते हैं तो 2:15 अदरवाइज मैं कर लेती हूँ, वो एक प्रॉब्लम थी. शेड्यूल करते हैं अभी भी. अच्छी बात. सर इंटरनेशनल ISC इंटरनेशनल सच कॉपी सबमिशन से सच कॉपी सबमिशन वहां से 3 months. सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट. अब वहां पर मत देखिए, पहले आपके दिमाग से आंसर दीजिए, नहीं आता है तो वहां पर देखिए. I will please it. Sir, section 9 is about provisional specification and complete specification, sir. Provisional का specification और complete specification के बीच में 12 months. Within 12 months we have to submit. फॉर्म नंबर form number 2. नो फीस. No fees, sir. एंड 12 मंथ्स के अंदर हमें करना है, नहीं हुआ तो
नहीं हुआ तो वो फिर अबंडन टू बी अबेंडन। टू बी अबंडन हो जाएगा सर। या तो आज अबेंडन कर, ऐसा है ना कि आज हमने फाइल किया, आपने कहा था ना कि फ्यूचर टेंस है, टू बी यानी हो सकता आगे जाके होगा। आज हमने प्रोविजनल फाइल किया और आज ही हम कह रहे हैं कि 12 महीने में हमने कंप्लीट फाइल नहीं किया तो वो अबेंडेंट हो जाएगा। यस सर। मेरी आवाज क्या इको कर रही है? नहीं सर। परफेक्ट है ना? या परफेक्ट। सर इसमें एक और हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्म 9 पे पोस्ट डेटिंग का, विच इज 6 months. We परफेक्ट can है। post date provisional specification and also कंप्लीट complete specification by 6 months and maximum. within 12 months we can convert complete one into provisional as Provisional, well. yes sir. Section 10 talks about Specification, it is all about drafting. it is all about drafting. So जो आपका यहाँ काम पे है। तो बहुत कुछ ही आता है सर। हाँ Rule मैडम, मगर 13, रूल Rule 13 में 13, Rule 15, Rule 16. हेलो, यस, गुड आफ्टरनून। नहीं मैडम, रूल नंबर 13 से टाइटल की वर्ड लिमिट, Title की limit 15 sir, abstract 150 एब्स्ट्रैक्ट की words. वर्ड लिमिट। ओके, रूल नंबर 15 से लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर मार्जिन Left and top 4 centimeter sir, right राइट and bottom बॉटम 3 centimeter. लेफ्ट टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे हमको नंबरिंग ऑफ द शीट, राइट टॉप पे नहीं, सॉरी लेफ्ट टॉप राइट, पे, लेफ्ट लेफ्ट टॉप टॉप पे पे एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट नेम, राइट टॉप, नंबरिंग ऑफ शीट, राइट बॉटम। सिग्नेचर, लेफ्ट इज डेट. परफेक्ट। Is does specimens are part of a specification? नो. Okay. Form number 5 timeline. डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप सर. Hmm. सर उसका टाइमलाइन वो Either बायोमटेरियल either with complete specification or within 1 month from complete specification. स्पेसिफिकेशन. यस. और 1 मंथ का एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगा? बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। 4, उसकी फीस कितनी है? 480 480 रुपीज। रुपीज. अब बायोलॉजिकल मटेरियल की टाइमलाइन, डिपॉजिट कब? सर आइदर ऑन और बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग. एंड उसका रेफरेंस कब? रेफरेंस विद इन 3 months ऑफ और फाइलिंग. अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो? सर ऑन और बिफोर फॉर्म नंबर 9. सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट प्रायोरिटी क्लेम्स. क्लेम जब कंप्लीटली डिस्क्लोज हुआ, यानी पहले क्लेम में, पहली एप्लीकेशन में हमने क्लेम को पार्शियली डिस्क्लोज किया, दूसरी एप्लीकेशन में हमने उसे कंप्लीट डिस्क्लोज किया, तो कौन सी डेट मानी जाएगी क्लेम की प्रायोरिटी डेट? कंप्लीटली जब डिस्क्लोज हुआ डिस्क्लोज सर, हुआ वही तब होगा। डिस्क्लोज्ड डेट ओनली विल बी द डेट ऑफ क्लेम. 11A टॉक्स अबाउट इट इज अबाउट पब्लिकेशन सर. पब्लिकेशन। जनरली पब्लिकेशन विदाउट फॉर्म नंबर 9 कितने मंथ में होता है? 18 months. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 मंथ्स। फॉर्म नंबर आफ्टर 9 फाइल कंप्लीशन किया ऑफ तो? 18 months. फॉर्म नंबर 9 फाइल किया तो फाइल किया तो विद इन 1 month. 9 का अमाउंट? 2500, वो मुझे याद नहीं था. ओके। एंड अगर मैं ये भी क्वेश्चन कर लूँ आपको, कॉमन सेंस से आंसर दीजिएगा, फॉर्म नंबर 9 कब तक फाइल कर सकते हैं? सर 18 months पब्लिकेशन है ना सर, बिफोर दैट लाइक 15 months में भी आप कर सकते हो. ठीक। कब कब एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी? सर सीक्रेसी डायरेक्शन में नहीं हो सकती है. कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अगर फाइल नहीं हुई है तो नहीं हो सकती है. देन दिस वन फॉर्म 29 अगर विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिया गया तो नहीं कर सकते सर. ऑल दिस 3 कब? 15 मंथ से पहले पहले। तो एवरीथिंग शुड हैपन विद इन 15 months. यस. एवरीथिंग नहीं, फॉर्म नंबर 29। 29. यस. कंफ्यूज है क्या मैडम आप? नहीं कोई नहीं गलती सर. हुई क्या आपसे आज के दिन में या कल से? कहाँ सर? आप थॉट प्रोसेस आपकी इनलाइन नहीं है नहीं कहीं नहीं. पर, तो चीजें होती है, वैसे चीजें होती है, आगे होती है, पीछे होती है, गलती होती है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। यस सर. तो
जब आप फोकस कर रहे हैं ना किसी चीज पे, तो आपको फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। पूरा वक्त चला जाने वाला है, बट अच्छे वक्त के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। 11B, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कब तक फाइल कर सकते हैं एग्जामिनेशन? 31 में 31 मंथ। फॉर्म नंबर 18 18 एंड 18A। and 18A expedited examination कितनी फीस है 18 की 4,000 एंड 18A की? 8,000 और कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मंथ। 31 months हम्म और 15 मार्च 2024 से पहले अगर कोई एप्लीकेशन है तब 48 months sir 48 मंथ्स। कौन कौन फाइल कर सकता है एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन? sir educational institute हम्म small entities startups then one female should be there am I right sir यस, यू आर one राइट। female एंड लास्ट applicant वन should be कंडीशन? there यस, यस, and करेक्ट। लास्ट वन, but पीसीटी एप्लीकेशन में जिन्होंने PC इंडिया को आईएसए के तौर पे रखा। वो कर सकते कि नहीं कर सकते कर सकते हैं। सर ये आप वॉइस इज पीसीटी ब्रेक एप्लीकेशन से वापस ब्रेकिंग, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। अब आवाज आ रही है मैडम? हाँ क्या जी क्रिक वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है ना? अब नहीं पहले हो रही थी जी, सर आप जो मैंने बोल रहे थे नहीं सर वाईफाई मोड पे कर लिया। 18A में जो पर्सन ने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते वक्त इंडिया को एज एन आईएसए, इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी के तौर पे रखा है, वो भी 18A फाइल कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेस एग्जामिनेशन किन के लिए होती है? सर वही सर स्टार्टअप नहीं, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन ओ सिर्फ और या सीटी के लिए होती है। पीसीटी के लिए करेक्ट हाँ मैडम। और आपको वो टेबल याद है? और एक्सप्रेस एग्जामिनेशन का अमाउंट कितना है? 5.6 के, 5,600। हाँ वो नहीं लिखा गया था सर कल से वो टेबल आपको याद है? 311 एंड 2 115 days। विच यस सर हाँ 5,600 यस किसके लिए है? नहीं, 311 एंड 2 115 days किसके लिए है? 311 हाँ यस सर बताइए। rule form 18 examiner to controller 3 months controller to controller he will FER 1 month E to C then C to FER sorry सर ऐसे याद है हाँ हाँ मैडम, E2C का मतलब है examiner to controller एग्जामिनर को जब आपकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन करने के लिए मिलेगी, तो वो 3 महीने में कंट्रोलर control को वापस कर देगा। अब हाँ कंट्रोलर के पास एग्जामिनर की रिपोर्ट है, वो उसमें से 1 महीने में फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बना देगा, और फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट एप्लीकेंट को विद इन 1 मंथ पहुंच within जाएगी। 1 month पहुंच और जाएगी वही yes 18A में क्या था? E to C is 2 months हम्म 18 में because 1 month C to FER तो 1 month ही रहेगा सर बट एप्लीकेंट को 15 days में मिल जाएगा रूल नंबर कौन सा एप्लीकेबल है? नॉर्मल एग्जामिनेशन है तो 24B,
एन एक्सपेडिट एग्जामिनेशन तो 24C। 11 के बाद 12 में क्या था मैडम? सर मुझे एक बार तो रिवाइज कर देना चाहिए था। नहीं मैडम, एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, देखिए देखिए, आप अपनी बुक के साथ देखिए और आंसर दीजिए। क्योंकि मैंने सच्ची बताऊं तो रिवाइज तो किया नहीं था सर कल। मैडम आप बरोबर हैं, आप जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं ना परफेक्ट है, बट जब भी आपके दिमाग में एक छोटी सी बात खटकती है ना मैडम, ये बहुत आप राई का पहाड़ बना देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं किया कितनी बार बोलेंगे आप? मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा, आप मत बोलिए, बोलिए। सभी का, मेरा भी खुद का नेचर है, मैं बहुत ही टेस्टी फूड खाता हूँ, तो मेरी हेल्थ मीन्स मेरा वेट बहुत ज्यादा है, 108 kg। ओ, तो हाँ, तो वो मेरी बैड हैबिट है, मुझे पता है। बट ये आपकी बैड हैबिट है कि छोटी सी बात को फिर आप उसको इतना एनहांस मत कीजिए। नहीं हुआ है तो क्या फर्क पड़ा, बुक लेके देख लीजिए, रिलैक्स रहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम यहाँ पर रिवाइज करने के लिए बैठे हैं। इतना तो आपने किया ना 11B तक, और देखिए थोड़ा थोड़ा आपको याद भी आ जाएगा। बुक लेके बैठिए बट आंसर दीजिए। एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन कब तक जाएगी मैडम? एग्जामिनेशन फॉर एप्लीकेशन विद इन 31 मंथ्स। क्या मैं आपको ये कहूँ कि अ, नहीं, वो तो हमें रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना है। हाँ, बट अगर एप्लीकेशन आपने सिर्फ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया है, अभी तक उसकी पब्लिकेशन नहीं हुई है, तो क्या वो एग्जामिनेशन के लिए रिफर की जा सकती है? नो, तो कब की जा सकती है? आफ्टर पब्लिकेशन। हम्म इसके लिए कोई फॉर्म है? नहीं है। नो सर। और वो 311 एंड 2115 डेज वाला टाइम लाइन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। एग्जामिनर क्या क्या चीजें देखेंगे एप्लीकेशन में? सर फॉर्म 3 का, हम्म देन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हम्म वेदर, वही फॉर्म 3 तो हो गया ना, वेदर, हम्म then they will also check no sir whether this is related to secrecy directions or not, हाँ जी। एप्लीकेशन एज पर एक्ट है कि नहीं है, है कि ये जो नहीं। आपने कहा वो भी देखेंगे। हम्म, सीक्रेसी डायरेक्शन को भी देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि सारे फॉर्म्स जो रिक्वायर्ड है वो फाइल किए गए हैं कि नहीं है, all पब्लिकेशन हुआ है कि नहीं prescribed है। forms are done. और जो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, Mhm. पेटेंटेड और नॉन पेटेंटेड लिटरेचर, उसको भी देखेंगे। और आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाकर पहले कंट्रोलर को भेजेंगे, और कंट्रोलर वहां से आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजेंगे। Yes. सेक्शन 13 में कीवर्ड प्रायर पब्लिकेशन एंड प्रायर Search for anticipation by previous publication and by prior claim. Search for प्रीवियस पब्लिकेशन तो समझ में आता है कि आपकी कौन सी डेट से पहले प्रीवियसली पब्लिश डॉक्यूमेंट आपको एंटीसिपेट करेंगे। Sir, can you repeat the question, sir? किस डेट से पहले के पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट आपकी एप्लीकेशन को एंटीसिपेट कर सकते हैं? आपकी Sir, फाइलिंग डेट से पहले। filing date से पहले। Correct. सिंपल है। एक केस है जहां पर आपकी फाइलिंग डेट से पहले डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं है, फिर भी वो आपको एंटीसिपेट कर सकते हैं। वो क्या है? क्या बिफोर फाइलिंग ऑल्सो दे विल एंटिसिपेट, आप पूछ रहे हैं सर? ऐसा कौन सा केस है जहां पर ये हो सकता है? सीक्रेसी डायरेक्शन सर। नहीं। जब किसी और एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट आपसे आगे हो, प्रायोरिटी डेट आपसे आगे हो, मगर उसका पब्लिकेशन आपके बाद में हुआ हो, या फिर किसी भी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट भी आपसे पीछे हो, बट उनकी क्लेम की प्रायोरिटी डेट आपके क्लेम के प्रायोरिटी डेट से आगे हो। रेफरेंस, इट इज ऑल अबाउट रेफरेंस, व्हाट यू थॉट इज, हम्म फिर उनको रेफरेंस लगाया जाएगा। हम्म
Am I यानी correct? प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर आपकी एप्लीकेशन डेट से आगे है तो वो भी आपको एंटिसिपेट कर सकती है, एंड प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम अगर आपके एप्लीकेशन से आगे है, आपके क्लेम के डेट से आगे है, तो वो भी आपके क्लेम को एंटिसिपेट कर सकते हैं। Yes, sir. फोर्टीन टॉक्स अबाउट Consideration of the report of examiner by controller. एग्जामिनर की रिपोर्ट कैसी होती है? First examination report by examiner, sir. एग्जामिनर की रिपोर्ट कैसी होती है? Confidential. हम्म Confidential. क्योंकि और वो जो सिर्फ हमें कंट्रोलर देख सकते हैं. और जो हमें फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलता है वो कौन देता है? कंट्रोलर देते हैं, सर. कंट्रोलर देते हैं। अब सेक्शन नंबर 21 में जा रहे हैं। एफईआर हमारे पास आ गया, अब हमें रिप्लाई कब तक देना है? Within 6 months, sir. एक्सटेंडेड बाय Extended 3 months. 1,000 rupees. I think 1,000 rupees in which case? per month. Here, according to section 124B, can be extended 3 months. Sir, 1,000 rupees अगर वो फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो सर फॉर्म नंबर 18 फाइल किया तो 2,000 रुपीज पर मंथ. 18A में 2000। ओके. 18A अगर आपने फाइल किया है और आप एफईआर के रिप्लाई का एक्सटेंशन ले रहे हैं तो 2,000 रुपीज पर मंथ। फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है और आप एफईआर के रिप्लाई का एक्सटेंशन ले रहे हैं तो उस केस में 1,000 रुपीज पर मंथ, और दोनों एक्सटेंशन आपको फॉर्म नंबर 4 से ही मिलेंगे। हाँ, एक्सटेंशन फॉर्म नंबर इज 4 and one examiner report only controller can see, or if court requires then can be produced in the court. सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट Section 15 talks about power of the controller to refuse or require amended application. पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ स्पेसिफिकेशन। हाँ, तो here रिफ्यूज control भी कर सकते हैं और हाँ, अमेंड भी करवाने के लिए कह सकते हैं। control has 16 हमारा बाकी है अभी। 17 टॉक्स अबाउट power of the controller to make orders respecting dating of application. हाँ, पोस्ट डेट क्या होता है उसका एग्जांपल, एंड एंटी डेट क्या होता है उसका एग्जांपल। Example. And also refiling. हाँ मगर मैडम पहले पोस्ट डेट का एग्जांपल तो बताइए। Okay. Post date. Sir, post date to like controller will approve. कैसे? Like same as PS, no sir. 6 months we can post date. अब एंटी डेट का एग्जांपल बताइए। Post date. पोस्ट डेट हो गया, आपने पीएस को पोस्ट डेट किया। अगर मैं ये कहूं कि PS1 फाइल किया था, PS2 फाइल किया था, PS3 फाइल किया था, ये तीनों 2 मंथ्स के इंटरवल में फाइल किए थे, तीनों की प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी? फर्स्ट वाली। यानी आपने फाइल किया आज से 5 महीने के बाद, मगर उसको डेट क्या मिल रही है? पास्ट की। Past की. इसीलिए उसे कहते हैं एंटी डेटिंग। Yes sir. अंडरस्टूड? Yes sir. POC हो गया फिर इसमें टाइमलाइन 6 months. ओके। एंड दूसरा आपने जो कहा कि रीफाइलिंग डेट को भी कंट्रोलर फाइलिंग डेट कह सकते हैं अगर आपका अमेंडमेंट करने के लिए कंट्रोलर ने कहा तो 17(2) से, वो दोनों चीज। 18 Sir, section 18 we didn't do sir. Section 21 we did. वो इसके साथ साथ ही हो गया था सर सेक्शन 21, बस सेक्शन 14 के साथ से। सेक्शन नंबर 14 के साथ 21 हुआ था। हाँ सर, वही सेक्शन 14 के साथ 21 हो गया। और 18 सेक्शन 13 के साथ 18 हुआ था। सेक्शन 13 के साथ हुआ था सर। हाँ 18 हुआ था सर, करेक्ट। If both the applicant files in the same day, then reference will be added to both the applicants. And
दूसरा केस, अगर प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम से किसी की क्लेम एंटिसिपेट हो रही है, मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम C1 आज की है और मेरी प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम C1 आज से 1 महीने बाद की है, तो मेरी एप्लीकेशन में शीतल मैडम की एप्लीकेशन का रेफरेंस डाला जाएगा यस सर, C1 के आगे। वही That आपके में डाला जाएगा क्योंकि आपने बाद में किया था। बाद में किया। पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन, दोनों ने सेम डेट पे फाइल किया है तो दोनों में एक दूसरे का रेफरेंस डाला जाएगा, हालांकि कोई एक दूसरे को एंटिसिपेट नहीं कर रहा है। सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ नहीं सर, नहीं पोटेंशियल किया। पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। We पोटेंशियल didn't. इन्फ्रिंजमेंट कब माना जाता है? मान लीजिए आपकी एक पेटेंट है, उस पेटेंट के अंदर क्लेम C1 है और मैंने आज एप्लीकेशन फाइल की, आज मैंने एप्लीकेशन फाइल की, आपकी क्या थी? पेटेंट थी, एप्लीकेशन नहीं, पेटेंट थी। आपकी ग्रांटेड पेटेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है C1 क्लेम की, वो मैंने आज अपने एप्लीकेशन में फाइल की, तो मेरी एप्लीकेशन आपकी पेटेंट को पोटेंशियली इन्फ्रिंज कर रही है। So can you repeat? आपकी एक ग्रांटेड पेटेंट थी जिसके अंदर क्लेम C1 था और मैंने आज पेटेंट अपनी एप्लीकेशन फाइल की, नॉट पेटेंट, एप्लीकेशन फाइल की और उसके अंदर क्लेम C1 है, सेम। सेम। तो मेरा एप्लीकेशन आपकी पेटेंट को पोटेंशियली इन्फ्रिंज कर रहा है। हाँ, अब ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन की बात नहीं है, Claim सेक्शन की 18 बात। में एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन की बात थी, सेक्शन 19 में पेटेंट टू एप्लीकेशन की बात है। यस सर। अंडरस्टूड? तो Yes. इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया इन्फ्रिंजमेंट। पेटेंट के साथ अगर कोई भी छेड़खानी हुई तो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। वो बड़ा कानून है, उसमें पावर ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर तब तक के लिए एप्लीकेशन को आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक वो C1 क्लेम अगर मैं एप्लीकेशन से हटा ना लूं या फिर आपकी पेटेंट के C1 क्लेम को अमेंड या इनवैलिडेट ना कर दूं, यानी निकलवा ना दूं, इन शॉर्ट। तो ये होता है पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। समझ में आया तो बताइए, आप एक्सप्लेन कीजिए मैडम। सर अगर किसी ने पेटेंट फाइल किया है, ठीक है, उसकी C1 और द अनदर पर्सन B has also have same C1 claim एप्लीकेशन में मगर application, तो बी की एप्लीकेशन ए के पेटेंट A के को पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, कर पोटेंशियल रही है। इन्फ्रिंज कर रहा है सर वो। जी। सेक्शन नंबर 20 टॉक्स अबाउट सब्स्टिट्यूशन में। I will write it sir. सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के लिए है फॉर्म नंबर 6 के अमाउंट है 800 रुपीज। टाइमलाइन है उसकी एनी टाइम बिफोर ग्रांट। मतलब है इसका, सर 1 सेकंड प्लीज सर। सर प्लीज बता दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। संजय सर, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। आप बताइए कैसे, हमारी प्रिपरेशन सही है या गलत है? इफ देयर एनी लिटिगेशन प्लीज। नहीं, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, गोइंग ऑन वेल। श्योर सर। सर कभी भी कोई लेकुना दिखे तो हमें जरूर से नहीं बताइएगा। कुछ वैसे मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, IPR पे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। ओह या ग्रेट। मेरे को 18 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए। 18 years? हाँ। सर यू आर लुकिंग वेरी यंग देन। So it's been 18 years that I'm practicing on IPR only. That's great sir. I can make out what is going on. He is very happy sir. Ask madam. Thank you sir. Sorry to disturb. No need to say sorry sir. Jai Jinendra. जय हिंद। Yes, sir.
सेक्शन नंबर 20 टॉक्स अबाउट सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। Form 6, 800 rupees. इसका मतलब क्या है पहले मैडम वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, अब आप उस एप्लीकेशन को, पेटेंट नहीं है अभी, वो एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन फेज में ही आप किसी और को बेच देना चाहते हैं, Okay, तो वहां पर फॉर्म नंबर 6 आएगा। okay, sir. तो जब पेटेंट बन जाती है यानी आफ्टर ग्रांट कौन सा फॉर्म आएगा? फॉर्म नंबर 16। After grant. वंस इट बिकम्स योर प्रॉपर्टी देन वहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं, उसे कहा जाएगा असाइनमेंट। Sir, once. Can you repeat, sir? मैडम बिफोर ग्रांट अगर आपको एप्लीकेशन को सेल करना है हाँ. तो वो आएगा फॉर्म नंबर 6 से, सब्स्टिट्यूट करना कहेंगे उसे। एंड आफ्टर ग्रांट ये एक्चुअली सेक्शन 20 से रिलेटेड नहीं है, सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट फॉर्म नंबर 6 ओनली, बट जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, अगर आफ्टर ग्रांट अगर आपको किसी और को पेटेंट सेल करना है, पेटेंट, तो उसे असाइनमेंट कहते हैं। एंड एज पर सेक्शन नंबर 69 फॉर्म नंबर 16 से 16 से आप असाइनमेंट कर सकते हैं आफ्टर ग्रांट। After grant, if I sell the patent, then एज पर सेक्शन नंबर 69 फॉर्म नंबर 1616 it can be assigned. it can be assigned to someone else. एक मैं आपको डिविजनल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा देता हूँ एंड देन वी विल फॉरवर्ड टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन ड्राफ्टिंग पे हम आगे बढ़ेंगे। डिविजनल एप्लीकेशन मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 16। व्हेन, कब ये फाइल की जाती है डिविजनल? व्हेन देयर इज अ मोर देन वन इन्वेंशन in a patent application, then divisional application can be filed. मैडम मैं बोल देता हूं, आप लिखने में मुझसे भी आगे हैं, मैं आपको समझा दूंगा ना तो आप सही में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, मुझसे भी अच्छा लिख पाएंगे। तो Yes, समझ sir. लीजिए पहले, जब एक पेटेंट के अंदर एक से ज्यादा इन्वेंशन है तो डिविजनल करना पड़ता है उसका। अब वो कौन कर सकते हैं? या तो एप्लीकेंट खुद कर सकते हैं। क्या प्रोविजनल में कर सकते हैं? हाँ, प्रोविजनल फाइल करने के बाद भी कर सकते हैं। क्या कंप्लीट फाइल करने के बाद कर सकते हैं? हाँ, कंप्लीट फाइल करने के बाद भी कर सकते हैं। क्या कंट्रोलर डायरेक्ट करे तब भी कर सकते हैं? हाँ, कंट्रोलर डायरेक्ट करे तब भी कर सकते हैं। कंट्रोलर ने कहा कि मैंने देखी आपकी एप्लीकेशन में एक से ज्यादा इन्वेंशन है, तो वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि शीतल मैडम आप अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कीजिए। शीतल मैडम खुद भी देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को कि मेरी एप्लीकेशन में एक से ज्यादा इन्वेंशन है, चलो मैंने प्रोविजनल फाइल किया है उसको डिवाइड कर दूं, चलो मैंने कंप्लीट फाइल किया है उसको डिवाइड कर दूं। बट ये सारी चीजें कब तक हो सकती है? बिफोर ग्रांट। अब मान लीजिए मैंने पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल किया था 1/125 को, एंड उसका जो डिविजनल एप्लीकेशन था जिसको मैं फर्दर एप्लीकेशन कहता हूं, तो फर्दर एप्लीकेशन फाइल किया था मैंने 1/7/25 को। तो जब मैं ये डिविजनल एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं, ये फर्दर एप्लीकेशन ही क्या है? डिविजनल एप्लीकेशन है। Yes, sir. तो उसमें मुझे फर्स्ट एप्लीकेशन का रेफरेंस देना पड़ेगा। 1/125 का. हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो फर्दर एप्लीकेशन है उसका टर्म भी फर्स्ट एप्लीकेशन से ही स्टार्ट होगा।
अंडरस्टूड मैम? अब ये जो चालू हो जाएगा, यस। अब ये जो डिविजनल एप्लीकेशन है उसकी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कब फाइल करनी है? तो 6 month फ्रॉम फाइलिंग फर्दर और 31 month फ्रॉम प्रायोरिटी। अब ये 6 month फ्रॉम फर्दर का मीनिंग क्या हुआ मैडम? फर्दर यानी कौन सी डेट? डिविजनल एप्लीकेशन सर। हाँ, और 31 month फ्रॉम प्रायोरिटी यानी कौन सी डेट? डेट ऑफ फाइलिंग सर। कब? अगर हमने पहली एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं किया था तब। अगर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं किया था तब। फॉर्म नंबर 18 नॉट फाइल्ड। ओके। देन सेकंड एप्लीकेशन जो है उसका 6 month फ्रॉम फर्दर फाइलिंग एंड 31 month फ्रॉम प्रायोरिटी। अगर हमने पहली एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल किया था तो ऑन द सेम डे, if form 18 filed for first application. Any doubt up to No. such information? नहीं सर, इट्स क्लियर, वेरी क्लियर। लिख दीजिए, ये हो गया सेक्शन नंबर 16। गुड आफ्टरनून गौरव सर। गुड आफ्टरनून सर। जय श्री गणेश। जस्ट आया मैं डेटा। सर सेक्शन 16 चालू है सर। सेक्शन 16 चालू है, मैं आपको समझा देता हूं, पहले समझ लीजिए फिर हम आप लिख लीजिएगा, ओके, इन योर ओन लैंग्वेज। द फर्स्ट पॉइंट इज, चलिए इसको थोड़ा सा एनिमेशन करके लगते हैं। सर मेरी वीडियो से आपको डिस्टरबेंस आ रही है क्या सर? नो, कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप्स? नो नो सर। नथिंग। ओके। I'll just drink water. Sir, section number 18, section number 16 talks about divisional application. The first point, divisional application हम कब फाइल करते हैं?
when your invention contains more than one invention in a single patent, तब हम डिविजनल फाइल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा मत, समझिएगा पहले। दूसरा पॉइंट, कौन फाइल कर सकता है डिविजनल एप्लीकेशन को? एप्लीकेंट खुद फाइल कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या प्रोविजनल फाइल की है तो कर सकता है? हाँ, प्रोविजनल फाइल की है तब भी कर सकते हैं, एंड कंप्लीट फाइल की है तब भी कर सकते हैं। क्या कंट्रोलर आदेश दे सकते हैं? हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन कंट्रोलर देखते हैं और उनको लगता है कि इसमें एक से ज़्यादा इन्वेंशन है, तो कंट्रोलर भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं डिविजनल फाइल करने के लिए। कब फाइल करना होता है? बिफोर ग्रांट। कब फाइल करना होता है? बिफोर ग्रांट। फिर मान लीजिए आपने पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें मल्टीपल इन्वेंशन थे, वो फाइल की थी ऑन अ 1/1/25 डेट, और आपने मान लीजिए डिविजनल एप्लीकेशन फाइल की ऑन 1/7/25, जिसको फर्दर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। तो रेफरेंस देना पड़ेगा या फर्दर एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन का। क्यों? क्योंकि टर्म जो होगा ये फर्दर एप्लीकेशन का, वो कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट वाली से। दूसरा, अगर फर्स्ट एप्लीकेशन में ये जो एप्लीकेशन थी उसमें फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं था, फॉर्म नंबर 18 इफ नॉट फाइल्ड, तब जो ये फर्दर एप्लीकेशन है उसका फॉर्म नंबर 18 6 मंथ फ्रॉम फाइलिंग फर्दर, इट मींस 1/7/25 से 6 मंथ, या फिर 31 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी, 1/1/25 से 31 मंथ, विच एवर एक्सपायर्स लेटर, तब फॉर्म नंबर 18 फाइल करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, अगर पहली एप्लीकेशन की फॉर्म नंबर 18 फाइल्ड थी, पहले से ही थी, तो फिर ऑन द सेम डे, कब? जब हमने फर्दर एप्लीकेशन फाइल की उसी दिन फॉर्म नंबर 18 फाइल करना पड़ेगा डिविजनल एप्लीकेशन का भी। अब इतनी इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? अगर ये हम, तो इसके लिए भी मैं रेफरेंस दे देता हूँ। ये जो एप्लीकेंट प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिविजनल फाइल कर सकता है, वो है रूल नंबर 13(1)(a), रूल नंबर 13(1)(a), सब क्लोज 1A। एंड ये जो है 31 मंथ वाली और 6 मंथ वाली टाइमलाइन, वो है रूल नंबर 24B में मेंशन। इट्स मेंशन अंडर रूल नंबर 24B। रूल नंबर 24B, पहले भी ये रूल नंबर आया था। हाँ, एग्जामिनेशन में मैडम, एग्जामिनेशन में ही आया था। फॉर्म नंबर 18 आएगा तो रोल नंबर 24 भी आएगा। अच्छा, फॉर्म 18 जब भी आएगा रूल रूल नंबर नंबर 24 24 भी आएगा, और रूल फॉर्म नंबर 18A जब भी आएगा तो रूल नंबर 24C आएगा। ओके। पब्लिकेशन की जब भी बात होगी, फॉर्म नंबर 9 की जब भी बात होगी, तो रूल नंबर 24A आएगा। आप म्यूट हैं गौरव सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। So section 7 also say that means one invention, one application. Invention per पर application. एप्लीकेशन, हाँ, मगर अगर भूल से भी आपने ज्यादा इन्वेंशन फाइल कर दी है तो क्या होगा? तो उसको डिवाइड करवाया जाएगा। Okay. इसीलिए तो डिविजनल एप्लीकेशन का ये सेक्शन 16 है। सर बाई चांस फॉर्म 18 हम लोग फाइल कर दिए ऑन द सेम डे ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग, ओके, सो यू आर टेलिंग फ्रॉम देन within 18 months our examination will start? No, form 18 is for examination. फॉर्म नंबर 9 फाइल कर दिया हमने अगर, तो विद इन 1 मंथ पब्लिकेशन होगा, और फॉर्म नंबर 9 फाइल नहीं किया तो 18 महीने के बाद अपने आप एप्लीकेशन पब्लिश्ड हो जाएगी। 18 मंथ इज फॉर पब्लिकेशन। So before publication, after publication, एग्जामिनेशन के लिए जाएगी नहीं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कब?
एग्जामिनेशन के लिए जाएगी जब उसका पब्लिकेशन हो चुका है तभी। Sir, my question is not that. हम्म अगर मतलब for this divisional application I'm telling, अगर हम्म हम लोगों ने फॉर्म 18 फाइल कर दिया हम्म on the same day if हम्म form 18 is हम्म filed for first application, हम्म। okay, और हम लोगों ने 18 months के अंदर डिविजनल एप्लीकेशन नहीं फाइल किया तो कोई पर्पस ही नहीं है। 18 मंथ आपने क्यों लिए? बिफोर ग्रांट कभी भी कीजिए, लिखा है डिविजनल कब तक फाइल करना है, बिफोर ग्रांट। हाँ आपके दिमाग में 18 मंथ्स वो पब्लिकेशन वाले आ गए हैं, वो पता नहीं कैसे सेट हुआ है आपके दिमाग में। ओ लास्ट पॉइंट सर। लास्ट पॉइंट में फॉर्म नंबर 18 है। Oh yeah, sorry. On the same day basis. Sir, why this divisional application required when inventor feel there is some correction or something, No or correction. need to The add, first line, the means first not line, to add. the first line. When you feel that your application contains more than one application, more than one invention, then anyhow you need to divide it. Anyhow you need to satisfy the first condition of section 7, one patent for one invention. One, That's why. Understood or any doubt? Any question? sir, within 6 months, no? Within 6 months, means there is time limit for divisional application. Yes sir, within 6 months from Within further 6 months filing. further filing, or 31 months for And uh, from priority, priority. that is available for everyone. 31 month from priority तो सभी के लिए है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन तो वो तो इनके लिए रहेगी, बट साथ में अगर 6 मंथ फ्रॉम दी डिविजनल, अगर डिविजनल फाइल किया तो 6 महीने और भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर 31 मंथ की प्रायोरिटी निकल भी जाती है और डिविजनल बाद में आपने फाइल किया है तो आपको सिर्फ 6 महीने मिलेंगे। So 31 plus 6 months sir. हाँ 31 प्लस नहीं, जब आपकी सिक्योरिटी डायरेक्ट सॉरी जब आपकी डिविजनल फाइल हुई वहां से 6 महीने। मान लीजिए कि आपकी डिविजनल फाइल हुई ऑन 30th मंथ, तो अब आपको कितना ड्यूरेशन मिलेगा फॉर्म नंबर 18 फाइल करने के लिए? 30 मंथ पे आपकी डिविजनल फाइल हुई, तो अब हाँ तो 31 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी, वो तो 31 मंथ ही रहेगा। एंड डिविजनल से 6 मंथ यानी 30 + 6, 36 मंथ तक का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको। Okay. विच एवर एक्सपायर्स लेटर, लिखा है ना, 6 मंथ फ्रॉम फाइलिंग एंड फर्दर 31 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी, विच एवर एक्सपायर्स लेटर, ये लिखिएगा, मैंने लिखना भूल गया। विच एवर एक्सपायर्स लेटर, जो बाद में एक्सपायर होता है वहां तक की डेडलाइन मिलेगी। नाउ एनी डाउट? 6 months from filing हम्म or 31 31 मंथ फ्रॉम months प्रायोरिटी। from filing. प्रायोरिटी कहाँ से है सर, गौरव सर यहाँ पर? डेट ऑफ फाइलिंग की एक डेट रहेगी। हाँ सर, डेट ऑफ फाइलिंग यही रहेगी ना सर, एक कौन डेट सी रहेगी डेट बताइए, दो डेट है, कौन सी डेट को आप प्रायोरिटी मानेंगे? कि सर फर्स्ट 1/1/25। 1/1/25, भले ही आपने डिविजनल फाइल किया हो 1/1/25 को, मगर वो माना जाएगा कि वो 1/1/25 को ही फाइल था, क्योंकि आपने सिर्फ उसको डिवाइड किया है। सारी इंफॉर्मेशन तो आपने 1/1/25 को ही दी है। एंड अगर इसको भी समझने जाइए आप कि भाई अगर पहली एप्लीकेशन का अगर आपने एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर दी है
तो आपको डिविजनल की तभी के तभी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी शायद हो सकता है कि आपकी जो पहली एप्लीकेशन है वो एग्जामिनेशन फेज में अभी चल रही हो, एग्जामिनर के पास हो, उनकी डेडलाइन चल रही है ना 3 महीने वाली, यस। तो फिर आपको तभी के तभी एग्जामिनेशन फाइल करनी पड़ेगी, ताकि ये जो नई एप्लीकेशन है वो भी उसी के साथ एट अ टाइम आगे बढ़ जाए एग्जामिनेशन में। दैट्स व्हाई। समझ पा रहे हैं मैडम ये बात को? अब वो समझ में आ गया सर। दिस लास्ट पॉइंट ओनली आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। ऑन द सेम डे इफ फॉर्म 18 फाइल्ड फॉर हाँ, ऑन द सेम डे मीन्स यही डेट पे, ऑन 1/7/25। हाँ यही डेट पे फॉर्म नंबर 18 फाइल करना है। इफ 1/1/25 वाली एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 ऑलरेडी फाइल्ड था बिफोर फाइलिंग फर्दर एप्लीकेशन। डिविजनल एप्लीकेशन फाइल करने से पहले जो मेन एप्लीकेशन थी, अगर उसमें आपने फॉर्म नंबर 18 फाइल करके रखा था, तो डिविजनल एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 उसी के साथ फाइल करना पड़ेगा। ओके क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मेन एप्लीकेशन है वो एग्जामिनर ऑलरेडी एग्जामिन कर रहा हो, ओके तो उसी दिन अगर आप डिविजनल की एग्जामिनेशन फाइल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली एग्जामिनर के पास पहुंच जाएगी। यस। और अगर फॉर्म नंबर 18 पहली एप्लीकेशन का फाइल नहीं था, तब डिविजनल एप्लीकेशन के लिए टाइमलाइन कितनी है मैडम? सर अगर अगर फॉर्म नंबर 18 पहले वाले एप्लीकेशन का फाइल नहीं था, तो डिविजनल एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल कर सकते हैं? 6 months 6 मंथ फ्रॉम 6 months from filing further, फर्दर, और 31 months from priority, विच एवर एक्सपायर्स। whichever expires later. एनी डाउट मैडम? नो सर, अभी समझ गई सर। गौरव सर, एनी डाउट? No, sir. Form 18 is nothing but a request for examination. यस। So examination, sir, both application यानी फर्स्ट एप्लीकेशन एंड फर्दर एप्लीकेशन जो करेंगे तभी दोनों फॉर्म भरना कंपल्सरी है फॉर्म 18। हाँ जी, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट। इज माय स्क्रीन विजिबल मैम? यस सर, यस सर। सबसे पहला एग्जांपल, मान लीजिए कोई डिविजनल नहीं है, हमने एक एप्लीकेशन फाइल की जिसको मैं बोल रहा हूँ मेन एप्लीकेशन। वो फाइल की हमने 1, या फिर आज की डेट ले लेते हैं, आज की डेट टुडे 19/11। आज की डेट में क्या खास बात है पता है मैडम? आज इंदिरा गांधी जी का बर्थडे है। I don't even 19/11 19/11 2025। तो आज
हमने ये एप्लीकेशन फाइल की है। अब मुझे ये कहिए, मंथ वाइज कहिएगा, भले ही आंसर दीजिए वो मंथ वाइज दीजिएगा, कि इस एप्लीकेशन के लिए हमें रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कब तक फाइल करना है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, राइट? वो तो उसी दिन भी कर सकते हैं सर। कब तक कर सकते हैं? उसी दिन तो कर ही सकते हैं, किस डेट के बाद नहीं कर सकते हैं? पब्लिकेशन के पहले करना है। नहीं। 18 months। नहीं। Before 18 months, sir, request नहीं। for examination. Before नहीं, वो 40, रिक्वेस्ट फॉर within 48, पब्लिकेशन है, अर्ली Okay, that was पब्लिकेशन। early publication. Sorry, I am getting that. within 48, 31 months. हाँ, 48 या 31 मंथ, वो 31 डिसाइड कहाँ months. से होगा? हम अमेंडमेंट के बाद वाली डेट देख रहे हैं। देखिए, ये एप्लीकेशन okay, फाइल हुई है आफ्टर 15 मार्च 2024, करेक्ट? So गौरव 31 सर, months. 31 हाँ, months. तो 31 मंथ। Yeah. 31 okay, months. ये सर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, okay, तो इसको मैं कहूँ कि 31 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी, वही होगा। Yes, sir. क्योंकि प्रायोरिटी यही है, एक ही एप्लीकेशन है। before, हाँ, बिफोर 15 मार्च 2024 से पहले अगर कोई एप्लीकेशन थी तो 48 मंथ, बाद में है तो 31 मंथ। तो ये Yes. जो डेट है हमारी मेन एप्लीकेशन फाइलिंग की, वो 15 मार्च 2024 के बाद में है या पहले है? Sir, this is after because 24 तो हो गया. That is. आपको समझ में आ गया गौरव सर को? बेटा Okay. आपको Okay. समझ में आ गया? yes sir, अंडरस्टूड सर? yes sir, परफेक्ट। before, एक बार श्योर हो जाइए सर, हाँ, कंफ्यूजन मत रखिए, अगर पूछना है तो पूछिए, कोई बात नहीं है। yeah, Now, from Raleigh, perfect, yes, ओके। अब मान लीजिए कि इस एप्लीकेशन में एक से ज्यादा इन्वेंशन थे, ये एप्लीकेशन में 2 इन्वेंशन थे। there were 2 Two invention in this inventions. application। और कंट्रोलर आपको कहते हैं, कंट्रोलर आपको डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोलर ऑर्डर देते हैं डिविजनल करने के लिए ऑन 1/126। कंट्रोलर ने आपको इन्फॉर्म किया कि गौरव सर, आपकी जो एप्लीकेशन थी उसमें मैंने कितने इन्वेंशन देखे? 2 2 invention. इन्वेंशन। तो आप ऐसा कीजिए कि no आप mentions, अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब गौरव सर क्या करते हैं? गौरव सर नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर, इन नेक्स्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, जो भी टाइमलाइन, ऐसी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है यहाँ पर, कोई भी टाइमलाइन, आफ्टर फ्यू डेज आप क्या फाइल करते हो? फर्दर एप्लीकेशन। जिसमें आप मेन एप्लीकेशन में से एक इन्वेंशन को निकाल के एक कंप्लीटली दूसरी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। वो फाइल करते हैं, मान लीजिए 1/1/28 को, 4 बरस के बाद, 2 बरस के बाद फाइल करते हैं, मान लीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं सर, कि अगर फॉर्म नंबर 18 मैंने जो मेन एप्लीकेशन है उसका फाइल कर दिया था, मैंने इस एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल कर दिया था, तो मुझे ये फर्दर एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन सेपरेट होगी, जब आप डिविजनल फाइल करते हो तो दोनों एप्लीकेशन को सेपरेट एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा, करेक्ट? तो अब ये दूसरी एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल करना है? अगर पहली एप्लीकेशन का
फॉर्म नंबर 18 फाइल हो चुका था। On the same day we have to apply, sir. तो ऑन द सेम डे। Okay. Because already apply कर तो हम्म फिर करना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, अगर पहली एप्लीकेशन में फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं किया था, फॉर्म नंबर 18 नॉट अप्लाइड, तो अब ये दूसरी एप्लीकेशन से कितने महीने में हमें फॉर्म नंबर 18 या क्या टाइमलाइन रहेगी फॉर्म नंबर 18 फाइल करने के लिए, इस डेट से कितने महीने मिलेंगे? Sir, 6 months from filing this divisional application 6 month from 1/1/28 or 31 months 31 month from priority. 19/11/2025 priority, whichever expires later। कौन से वाले बाद में एक्सपायर होंगे? Later. कौन से वाले? अभी इस केस में हम्म सर 28 वाला ये वाला वाला बाद में बाद में एक्सपायर होगा एक्सपायर सर होगा। फर्दर तो यहाँ तक आप फॉर्म नंबर 18 फाइल कर सकते हो। किसके लिए? ये फर्दर एप्लीकेशन के लिए। सर एकदम टोटली क्लियर सर। अच्छा है मैडम, आपने तो मुझे घबरा दिया ना एकदम। फिर आप आगे जब तक नहीं बोले थे तब तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना बोल दे मैडम कि टोटली कंफ्यूज हो गए। नहीं एकदम Sir, नहीं थोड़ा एक बार जो भी यानी कंफ्यूजन था वो सपोज क्लियर यानी हो गया। सर मेन एप्लीकेशन के साथ फॉर्म 18 फाइल किए हम्म तो ऑन सेम डे हम्म फॉर्म 18 सबमिट करना पड़ेगा हम्म। विथ फर्दर एप्लीकेशन। फिर से बोलिए। यानी फर्दर एप्लीकेशन जब फाइल मेन एप्लीकेशन के साथ हमने फॉर्म 18 फाइल किया तब जब भी हम्म यानी एडिशनल एप्लीकेशन यानी हम्म फर्दर एप्लीकेशन फाइल करेंगे हम्म। ऑन तो ऑन सेम डे फॉर्म 18 सबमिट करना जी पड़ेगा। जी। और सपोज मेन एप्लीकेशन के साथ फॉर्म 18 फाइल नहीं किया है हम्म तो फर्दर एप्लीकेशन के साथ फॉर्म 18 विचेवर इज लेटर हम्म जो डेट है हम्म मेन एप्लीकेशन की हम्म से मेन एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट से 31 मंथ्स हम्म और फर्दर एप्लीकेशन की 6 मंथ्स हम्म डेट विचेवर इज लेटर। हम्म। एनी डाउट? नो सर। सर क्लियर ना सर, इट्स राइट है सर? यस, आपने जो बोला वो बातें क्लियर है सर, एकदम सही है। थैंक यू। थैंक यू। अरे सर, ये चीजें समझ में आ गई, बस बड़ी बात है। ये फर्दर एप्लीकेशन जो डिविजनल एप्लीकेशन है वो एक सेपरेट एप्लीकेशन की तरह ही ट्रीट होगी। इट मीन्स अगर ये एप्लीकेशन बाद में जाके ग्रांट होती है तो उनकी रिन्यूअल फीस भी देनी पड़ेगी। उनकी एग्जामिनेशन एक सेपरेट एप्लीकेशन की तरह ही ट्रीट की जाएगी। उनको ग्रांट भी एक सेपरेट एप्लीकेशन की तरह ही मिलेगी। ओनली वन थिंग कि जो ये फर्दर एप्लीकेशन है उनकी प्रायोरिटी डेट पहले वाली एप्लीकेशन से रहेगी। एक्सेप्ट दिस फैक्ट, बाकी सारी चीजें एक सेपरेट एप्लीकेशन की तरह ही ट्रीट की जाएगी। सब कुछ सेपरेट ट्रीट किया जाएगा सर, बट रेन्यूअल फी जो भी होगा वो प्रायोरिटी डेट से कनेक्टेड होगा, टर्म उधर से ही चालू होगा। इट्स लाइक बर्थ ऑफ टू बेबी, होता है ना, जो जुड़वा बच्चे, सभी कुछ दोनों को खाना अलग से देना है, दोनों की आदतें अलग है, मगर फिर भी दोनों की जो प्रायोरिटी डेट है, बर्थ डेट, वो सेम है। इससे परफेक्ट सर।
सर कॉस्ट सेम रहेंगी ना सर? फॉर्मेटिंग की फीस सेम रहेंगी ना whenever we फॉर्म fill? 18 की फीस सेम रहेगी सर, सारी एप्लीकेशन ही फिर अलग हो गई सर, तो फिर फॉर्म 18 भी उतना ही रुपये का लगेगा ना दोनों में। Okay. दोनों में So फाइल करना from पड़ेगा फॉर्म 18, दोनों का पब्लिकेशन okay, होगा, दोनों का okay. एग्जामिनेशन होगा, दोनों कितना को ग्रांट पैसा मिलेगी। लगेगा सर? 4,000 पहले दो, वापस हाँ 4,000 दो, पैसा वेस्ट। तो मैडम अगर ऐसा होता तो सिर्फ मारवाड़ी लोगों के पास ही पैसा होता, बाकी सभी लोगों के पास पैसा ही ना होता। ऐसा नहीं सर, जस्ट बोल रही हूँ कि सही है मैडम, पैसे बचाने ही चाहिए, लक्ष्मी सर को सेव करना ही चाहिए। जी सर। सर फॉर्म 18 फॉर्म फिल करने के बाद ही कंट्रोलर यानी ऑर्डर दे सकता है, तो डिविजनल एप्लीकेशन वरना का वो अगर एंटरटेन नहीं करेगा। entertain नहीं कर आप फॉर्म नंबर 18 पैसे दो तब काम होगा, सकता। और कुछ नहीं। आई नो, जी पेटेंट का तो बहुत पैसा लेते हैं सर, हर जगह पैसा लेते हटा दूं इसको। हैं। हाँ जी सर। अब दो रास्ते हैं हमारे पास। नंबर 1, मैं सेक्शन नंबर 25 से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, और अभी हमारे पास हाफ एन आवर है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम स्पेसिफिकेशन को भी थोड़ा थोड़ा टच अपॉन करेंगे, आप जैसे चाहते हैं वैसे हम स्टार्ट करते हैं। बताइए, स्पेसिफिकेशन लिखना स्टार्ट करें? वहां पर लिखना ज्यादा होगा, आपको ज्यादा लिखना होगा, मीन्स वो समझ में आएगा आपको बाद में, बट आपको बार बार लिख के मुझे सबमिट करना होगा चीजें, तब जाके वो स्ट्रक्चर होगा। लेट्स स्टार्ट, आज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। आप एक पेज, फुल साइज पेज है ना आपके पास, A4 साइज पेज जिसमें लाइन्स हो? यस हाँ सर। हाँ सर नहीं सर। परफेक्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कोई एक स्पेसिफिकेशन ओपन कर लेता हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। अब हम पहले पेज में क्या लिखना है, द फर्स्ट पेज कैसा होगा जब भी हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को आंसर देना चाहते हैं, तो फर्स्ट पेज उसका किस तरीके से लिखना है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट पेज, वो बताने वाला है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन मैम? ओ यस सर। सबसे पहली लाइन हमें ऐसे सेंटर में लिखनी है, फॉर्म 2, क्योंकि हम किसको फाइल कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन को। स्पेसिफिकेशन तो यस। स्पेसिफिकेशन कौन से फॉर्म से फाइल होता है, फॉर्म नंबर 2। 2। लिखिए ऐसे एक नए पेज पे सेंटर में पहली लाइन लिखिए, फॉर्म 2, इस तरीके से। यस सर। ओके, हम कौन सा पेटेंट एक्ट यूज कर रहे हैं, दी पेटेंट 90 एक्ट 1970। तो दूसरी सर, लाइन में लिखिए, दी पेटेंट एक्ट 1970। कैपिटल में होना चाहिए सर। जी मैडम, एज इट इज, यही फॉर्मेट में। फिर थर्ड लाइन है, ये 1970 ईयर में 39th अमेंडमेंट था, इसीलिए इसको लिखा है 39 ऑफ 1970। 39 ऑफ 1970। ये सारी चीजें हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब ये फॉर्म को कोई देखेंगे, कोई एडवोकेट देखते हैं, तो वो किस किस एक्ट को रिफर करें इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉर द लिटिगेशन, वो उनको पता चले। दैट्स वाई जब भी हम रेफरेंस देते हैं किसी भी एक्ट का, वो उस पर्पज से देते हैं कि सामने वाला पहले ये एक्ट ओपन करके देख ले, उसके हिसाब से हमने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ थिंग। फिर लिखा है एंड, एक्ट आ गया 1970। रूल कौन सा है, द पेटेंट रूल्स 2003। द पेटेंट
रूल्स 2003। अब एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद, एक लाइन बीच में स्पेस छोड़ना है आपको, फिर लिखना है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। यहां पर अगर डेटा में, एग्जाम में डेटा में आपको दिया गया है प्रोविजनल लिखिए, तो आप प्रोविजनल लिखेंगे। अगर डेटा में दिया गया है कंप्लीट लिखिए, तो कंप्लीट लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। Yes. Yes. तो अभी लिखिए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। फिर उसमें मैडम ये जो हमने एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल की वर्ड लिमिट निकाली थी, वो कौन से रूल से थी? रूल नंबर 13। 13 और सेक्शन 10 से हाँ, आपने तो लिखा है। वही है, सी सेक्शन 10 एंड रूल 13। हम सामने वाले को बता रहे हैं कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको कौन सा सेक्शन एंड कौन सा रूल पढ़ना चाहिए। यस सर। सी सेक्शन 10 एंड रूल रूल 13, ये पढ़ने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट को असेस करेंगे। यस सर। Yes. Sum to the patent act 1973। तो ये जो 1 2 3 4 5, एक लाइन ब्लैंक छोड़ी, 6 7 एंड 8 लाइंस हुई होगी आपकी, काउंट कर लीजिए, टोटल 8 लाइंस हुई होगी। यस सर। तो वो 8 लाइन फिक्स है। जब भी आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या प्रोविजनल लिखेंगे, ये 8 लाइन एज इट इज रहेगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। सर प्रोविजनल होगा तो जस्ट दैट विल राइट प्रोविजनल, प्रोविजनल। हाँ, वो छोटा सा मॉडिफिकेशन, बाकी ये एज इट इज रहेगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। यस सर। और इसी तरीके से सेंटर में रहेगी, ना ही लेफ्ट साइड पे ना ही राइट साइड पे, सेंटर में ही। डाउट? एनी डाउट? नो डाउट सर। ओके। फिर हमें टाइटल लिखना है। टाइटल में डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर टाइटल रहेगा। पहले टाइटल के बाद कॉलम, डबल डॉट, और डबल डॉट के बाद इन्वर्टेड कोमास में टाइटल। टाइटल के लिए अभी जगह छोड़ दीजिएगा, टाइटल में आपको लिखवाऊंगा, सिर्फ आप फॉर्मेट बना लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। यस सर। क्लियर है सर? हाँ सर। उसके बाद में जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, आपको जो भी डेटा में दिया गया है, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, वो सभी एप्लीकेंट्स के नेम एंड एड्रेस लिखने हैं। So what is that applicant S sir? एप्लीकेंट एस मींस एप्लीकेंट अकेला भी हो सकता है, एंड प्लूरल एप्लीकेंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा होगा तो कैसे लिखना? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसे ही नीचे नीचे, जैसे कि ये नेम एड्रेस, फिर एंटर नेम एड्रेस, फिर एंटर नेम एड्रेस। Applicant 1, applicant 2 like that. हाँ, लाइक दैट। आप ऐसे टाइटल भी दे सकते हैं, एप्लीकेंट 1 नेम एड्रेस, एप्लीकेंट 2 नेम एड्रेस, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay sir. एक टेबल भी बना सकते हैं, एप्लीकेंट नेम एंड एड्रेस। इन शॉर्ट ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वहां पर, एप्लीकेंट, उसका नाम एंड उसका एड्रेस, ये होना चाहिए। But exam में address like something we can write. एक्स 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 एक्स। Okay sir. एग्जाम में एप्लीकेंट के नाम में भी आपको क्या लिखना है? एक्स 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 एक्स। इट मीन्स कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ फॉर्मेट पता है, वो पता होना चाहिए। શું થઈ ગયું? પછી વાત, હું સેશનમાં છું। प्रियम्बल, अब आती है बारी प्रियम्बल की। इसके बाद में ये जब भी आप लिखते हैं ना, टाइटल के लिए एक लाइन छोड़ के टाइटल लिखना है,
टाइटल कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं, फिर एक लाइन छोड़ के एप्लीकेंट्स की डिटेल लिखनी है, फिर डिटेल लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के प्रीएम्बल लिखना है। सर टाइटल को भी मतलब टाइटल जो अंदर है वो कैपिटल में ही लिखना है सर। कैपिटल लेटर्स, फिर एक लाइन छोड़ के एप्लीकेंट्स की डिटेल्स, फिर एक लाइन छोड़ के प्रीएम्बल। किसी ने ऐसा नहीं बताया सर, सच्ची प्रॉमिस। मैडम कुछ नहीं। ये है ना मैडम, क्या है पता है कि उन लोगों को पता तो होगा, नहीं पता है वो बात नहीं है, बट वो लोग शायद ज्यादा प्रैक्टिस करते होंगे। पढ़ाना और नहीं। ये चीज करनी, प्रैक्टिस करनी, वो दोनों डिफरेंट थिंग है। आप संजय सर को केस लड़ने के लिए भेज दीजिए, वो अच्छा लड़के आएंगे, मगर उनको बोलिए कि किसी और को केस लड़ने के लिए सिखाना है, वो बोलेंगे ये काम मेरे से नहीं होगा। मैं लड़के आ जाऊंगा मगर वो काम नहीं होगा। तो ये सभी के प्रोफेशन होते हैं। अब 15 बरस से इस एक ही प्रोफेशन में रहते रहते क्या चीजें बतानी है वो समझ में आता है, मगर लिटिगेशन कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। दैट इज माय लिमिटेशन एज वेल। दिस इज लाइक कॉन्फिडेंस देता है सर जब ऐसे पढ़ लेते हैं। अब प्रियम्बल में क्या लिखना है, देखिए क्या लाइंस लिखी है, यही लाइंस आपको हर एक प्रियम्बल में लिखनी है एज इट इज, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन particularly describe the invention and the manner in which it is to be performed। क्या कहना चाहता है ये मैडम? The following specification particularly describes, मतलब अभी जो भी आगे जो स्पेसिफिकेशन है वो इन्वेंशन को डिस्क्राइब कर रहा है एंड द मैनर हाउ इट इज परफॉर्म। तो हम इन्वेंशन को अब डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। हमने ये प्रीएम्बल दे दिया कि ये शादी का कार्ड है, तो शादी के कार्ड में कौन कौन डिटेल है वो सारी डिटेल्स आने वाली है। लाइकवाइज ओके सर, ओके मैम। यस ये फर्स्ट पेज की फॉर्मेट है, दिस इज अवर फर्स्ट पेज फॉर्मेट। एनी डाउट इन दिस फॉर्मेट? नो सर। ये पहले एक ही पेज में आना चाहिए, एक पेज से ज्यादा नहीं, बस एक पेज में इतना आना चाहिए। ओके अगर खाली भी रहेगा तो आई एम नॉट छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज। ओके ओके ये फर्स्ट पेज का फॉर्मेट है। ओके। अब आते हैं फील्ड ऑफ इन्वेंशन में। अब कहां पर आएंगे हम? फील्ड फील्ड ऑफ इन्वेंशन में। चलिए वापस पीपीटी पे आते हैं। आज के दिन में हम यही देखेंगे कि फील्ड ऑफ इन्वेंशन कैसे लिखते हैं, और फिर आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा जिसके लिए पहले आपको फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिख के मुझे सबमिट करना है। दैट इज आवर मेन टास्क। जी जी सर। जी, फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखने के लिए शायद सर को भी, शायद मैडम आपको भी नहीं पता है ना टाइटल नहीं नहीं कैसे लिखते हैं, टाइटल की फॉर्मेटिंग।
सर मुझे फॉर्मेटिंग सब नहीं पता सर, आई नो कि 15 वर्ड्स एक्सीड नहीं करना है, बस आई नो दैट। हाँ तो ड्राफ्टिंग से स्टार्ट करते हैं मैडम। मुझे लगा कि मैंने एक बार, हाँ आपको ड्राफ्टिंग को तो मैंने बताया था मैडम एक बार, सर वो क्लेम आप हम लोगों ने किया था सर। क्लेम किया। ओके मैडम, चलिए। नहीं आपको पता है, मैंने सुना है आपसे, टाइटल में क्या क्या चीजें नहीं आनी चाहिए हाँ मैडम? नहीं आनी चाहिए, लाइक स्पेशल वर्ड लाइक नोवेल्टी नहीं दिखानी चाहिए, एंड एडवर्ब्स लाइक इनोवेशन, हम्म इन्वेंटिव, दैट दोस काइंड ऑफ वर्ड्स। गौरव सर, टाइटल पहले तो 15 वर्ड्स में होना चाहिए, ये बात क्लियर है? जी जी। ओके, अब टाइटल के लिए आगे बढ़ते हैं कि टाइटल में सम टर्म्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन अ टाइटल आर, फर्स्ट थिंग, ये नहीं होने चाहिए। इन्वेंटर का नाम, इन्वेंटर्स नेम शुड नॉट बी मेंशन इन द टाइटल। B, the word itself, patent. You must avoid using this word. C, words in other language. Sometimes we are using the Roman words somewhere in order to give numbers of that particular thing. So this specification is in English language. So try to use English language only. Do not use any other words, other languages words into it. Fourth, usage of abbreviation, as ma'am just suggested, that usage of abbreviation such like fancy words such like best furniture, optimum result, something like that, need not to be used. It must be a concise one. बहुत ही concise लिखिए और particular क्या invention है वो बताइए। चलिए, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, एक्सरसाइज ले। टाइटल में क्या चीज कैसे लिखना है, टाइटल की एक्सरसाइज ले थोड़ी सी। एक आपके सामने पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं कि इसका टाइटल क्या हो सकता है। पैराग्राफ है, अ टूथब्रश इंक्लूड क्लीनिंग एलिमेंट सपोर्ट मेंबर्स दैट एनहांस क्लीनिंग एंड यूजर कंफर्ट व्हाइल ब्रशिंग। एक टूथब्रश है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं और ऐसे सपोर्ट मेंबर्स हैं जो जब हम ब्रश करते हैं तो कंफर्ट देता है ब्रशिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, दी क्लीनिंग एलिमेंट सपोर्ट मेंबर परमिट्स, दी क्लीनिंग एलिमेंट सपोर्ट मेंबर परमिट्स a head of the toothbrush to be comfortably received and manipulated within the user's head। हमारे मुंह में वो ब्रश जो है आराम से चला जाता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल का है मान लीजिए। Each flexible cleaning element support members has flexible stem formed of a resilient material। जो मटेरियल है उसका भी रेजिलिएंट मटेरियल है, अच्छा सा मटेरियल है। रेजिलिएंट का मीनिंग ना भी पता हो तो भी हमें यहां से टाइटल निकालना है, दैट इज अवर थॉट प्रोसेस। तो पहले मुझे ये बताइए यहां पर डिवाइस है क्या? एग्जैक्टली, टूथब्रश। 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 बस तो आप इतना स्टार्ट करते हैं ना जब टाइटल को लिखना, तो टाइटल लिखने में कैसे स्टार्टिंग होती है? ए या एन आर्टिकल से, ए या एन आर्टिकल से, ए फिर आता है टूथब्रश। आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये सॉरी मैंने ये वो कर दिया, आप समझ रहे हैं ना, ये टाइटल आपको कैपिटल में लिखना है, वो आप समझ लीजिएगा। तो ये सबसे छोटा फॉर्म हुआ टाइटल का, चलेगा ये भी, क्योंकि यहां पर हमने टूथब्रश को डिफाइन कर दिया है। इसके अलावा क्या क्या हम लिख सकते थे? मान लीजिए कि मुझे टूथब्रश को टूथब्रश की तरह नहीं लिखना था, तो मैं क्या लिखता? ए An apparatus? No, it's not a device. एन टूथ क्लीनिंग, ए टूथ क्लीनिंग डिवाइस।
truth a clean. truth cleaning device. लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल है। अगर आपको और एनहांस करना था तो अ टूथब्रश विथ क्लीनिंग एलिमेंट्स, और एनहांस करना है टूथब्रश विथ क्लीनिंग एलिमेंट्स, लिख सकते हैं कि नहीं? बट वापस जब भी आप ऐसे जो एक क्लीनिंग वर्ड और उसका यूज करेंगे ना, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। तो मेरा जो है कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको डिवाइस को डिफाइन करना है, ज्यादा एनहांस नहीं करना है। बस आपको टाइटल ऐसे देना है, ए या एन आर्टिकल से स्टार्ट हो, और वो प्रोडक्ट या प्रोसेस को डिफाइन कर दें कि ये किस प्रोडक्ट के लिए है या प्रोसेस के लिए है। सर एनी डाउट? मैम एनी डाउट? No, sir. No, no. ओके, तो बस ये है टाइटल। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं उसको देखते हैं। नहीं है इसमें? ओके, मैं आपको 2-3 एग्जांपल और भेज दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए। आते हैं फील्ड ऑफ इन्वेंशन में। अब फील्ड ऑफ इन्वेंशन कैसे लिखा जाता है उस पे बात करते हैं। दी स्टेटमेंट शुड प्रिफरेबली बिगिन विथ, कहां से स्टार्ट होगा फील्ड ऑफ इन्वेंशन? दी इन्वेंशन रिलेट्स टू से, दी इन्वेंशन रिलेट्स टू से, यहां से स्टार्ट होगा आपका फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखना, ये प्रीफिक्स है उसके लिए। दी Okay. इन्वेंशन रिलेट्स टू, यहां से स्टार्ट होगा, ये लाइन आप फिक्स कर लीजिएगा। दिस सेक्शन कैन बी देन फर्दर डिस्क्राइब द एप्लीकेबल टेक्नोलॉजी एरिया एट अ हायर लेवल ऑफ डिटेल। फॉर इंस्टेंस द फील्ड ऑफ इन्वेंशन सेक्शन कैन बी written एज, एक एग्जाम्पल दिया है यहां पर, इसको लिखिएगा। द इन्वेंशन रिलेट्स टू अ नोवेल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एडिटिव, ये लिखिएगा आप, ये लिखिएगा, यहां से लिखिएगा। द इन्वेंशन रिलेट्स टू ए नोवेल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एडिटिव। सर लिखना है आपको अभी। Yes. Composition useful for the preparation of biodegradable plastic products. And a process for the preparation of the said composition. Sir, composition तक पूरा ही लिखना है ना sir? Okay, for the preparation of biodegradable polymer additive composition useful for the preparation
पहला स्टेटमेंट लिख के रुकिएगा। तो जहां तक आपने मार्क किया लिख लिया। हम्म। क्लियर है सर? अब ये सर कहना क्या चाहता है मैडम, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है? पहले स्टेटमेंट से उन्होंने क्या बताया? ये उसका जो इन्वेंशन है, whatever that like novel biodegradable is useful for what? Is useful for preparation of what? And what composition and preparation it is using. तो ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं, यानी जो प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी अगर आप उसको फेंक देते हैं कहीं पर भी तो अपने आप अर्थ उसको कंज्यूम कर लेगा, या उसका डिस्पोजल पॉसिबल है विदाउट हैम्परिंग द एनवायरनमेंट। तो पहले बताया कि ये इन्वेंशन किस कैटेगरी में जाएगा, तो ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की कैटेगरी में जाएगा इन शॉर्ट। First thing is category. फील्ड ऑफ इन्वेंशन मैडम कैटेगरी है पूरा का पूरा। हाँ, yes sir. No, like जी, बट इसको लिखेंगे ना आप, फिर आपका माइंडसेट हो जाएगा कि यही स्टेटमेंट के साथ आपको जो इन्वेंशन में देने वाला हूं उसको इसी के साथ कंपेयर करना है बार बार थॉट प्रोसेस से, yes तो sir. आप लिख पाएंगे इसमें भी। ओके, फिर लिखा हुआ है द इन्वेंशन मोर पर्टिकुलरली। अब देखिए कि अगर आप सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? द इन्वेंशन मोर पर्टिकुलरली relates to a novel biodegradable polymer composition which is useful for the preparation of biodegradable master batch composition, which in turn is useful for the preparation of biodegradable polymer profile useful for the manufacture of biodegradable products such as carrier bags, garbage disposal bags, hospital disposal, packaging film and थर्मोफॉर्म प्लास्टिक्स। यानी अब देखिए कि इन्होंने वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहां पर यूज हो सकता है, एक कैटेगरी थी वो कैसे बनेगा, अब वो कहां पर लेके आए, मोर पर्टिकुलरली कहां पर यूज होता है वहां पर लेके आए। अंडरस्टूड सर? समझ में आ रहा है? हाँ सर। लिख लीजिए सर ये पूरा का पूरा, मगर ये चीज मेन लिखिएगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। दी इन्वेंशन मोर पर्टिकुलरली रिलेट्स टू, ये कोमा कहीं पर भी नहीं आएगा, ये कोमा गलत है, यहां पर भी गलत है, यहां पर भी गलत है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए, जब मैं समझाता था ना तो मैं कोमा कोमा करके समझाता था, इसलिए दी इन्वेंशन मोर पर्टिकुलरली रिलेट्स टू करके हमें आगे बढ़ाना है, दैट इज दी सेकंड स्टेटमेंट प्रीफिक्स। पॉलीमर
डन सर। अब मैडम मैंने आपको एक पेपर भेजा है, और सर आपको भी। उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 8A आपको अटेम्प्ट करना है। कौन सा? 8A। 8A पढ़िए उसको, एंड आपको सिर्फ क्या करना है, टाइटल एंड फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखना है। आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है। बाय 4:10 यू नीड टू सबमिट वॉट एवर यू हैव रिटन। ओके सर? म्यूट है, आप म्यूट है। सर क्या करना? टाइटल एंड फील्ड ऑफ इन्वेंशन, ये दोनों चीज आपको लिख के भेजनी है क्वेश्चन नंबर 8A के लिए, विद इन सर अभी का 15 मिनट्स। 15 मिनट्स ऑफ।
फील्ड ऑफ इन्वेंशन में मुझे 2 ही स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट, नॉट थर्ड स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। टाइटल एक लाइन में और 2 स्टेटमेंट फील्ड ऑफ इन्वेंशन के, नॉट मोर देन दैट। नहीं समझ में आ रहा है सर? गौरव सर, हेलो? समझ में आ गया सर। और बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए। टाइटल में लिख सकता हूँ कि फायर रेजिस्टेंट वायर कैसे लिखा आपने प्रोटेक्ट। टाइटल? रुकिए मैडम, और रुकिए मैडम, मैडम मैडम मैडम, टाइटल क्या लिखा आपने मैडम? Sir, with apostrophe, capital letters I have written a fire resistant wires and process thereof. परफेक्ट है सर। फायर रेजिस्टेंस वायर, हाँ, वायर ये फायर तो रेजिस्टेंट भी वायर। चलेगा। ये इतना हो गया। ओके, हाँ मैडम ने भी सही लिखा है, दोनों टाइटल वैलिड है। अब हम आते हैं फील्ड ऑफ इन्वेंशन में, जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, कुछ नहीं है वैसे तो, सिंपल ही है। कहां से स्टार्ट करेंगे फील्ड ऑफ इन्वेंशन को? फर्स्ट स्टेटमेंट में। The invention relates. मेंशन रिलेट्स टू। हाँ, अब कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट मैडम? पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा? दी Sir, इन्वेंशन रिलेट्स टू। it relates to fire resistant wire typically comprise a conductor wrapped with inorganic material in conjunction with one or more polymer layers. नहीं लिख- सर आपने क्या लिखा? और सर मैंने यही लिखा कि द इन्वेंशन रिलेट्स टू। हाँ, द इन्वेंशन रिलेट्स टू ही लिखा मैंने। फिर हाँ, हमने अब इसमें देखिए क्या सर, आप मेरे जैसे हैं, मैडम तो लिख लेंगे, आपको भी समझ में आ गया। मैं यस आपको यस ट्रिक देता हूँ, मैं आपको ट्रिक देता हूँ, आप लिख पाएंगे, जी देखिएगा आप। द इन्वेंशन रिलेट्स टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल यस और यस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड। द इन्वेंशन रिलेट्स टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल यस इंसुलेटिंग, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल कैटेगरी, क्योंकि इंसुलेट कर रहा है ना। यस यस इतना तो आप लिख पाते सर, सही बात है ना? मैंने यस सर क्या किया, मैंने ये सोचा कि ये कौन से डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल रहेगा। बैचलर अगर मुझे ये वायर बनाना है, तो मैं अगर कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी करूं, तो सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स बैचलर डिग्री का इलेक्ट्रिकल कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। सही है सर। अब हमें दूसरा स्टेटमेंट बनाना है। यस सर। दूसरे स्टेटमेंट की स्टार्टिंग कहां से होगी? द इन्वेंशन मोर पर्टिकुलर रिलेट टू। बरोबर है, ये तो पता चल गया सर आपको। अब हाँ हमें उसमें ये बताना है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऐसा क्या किया गया है ताकि वो फायर रेजिस्टेंस वायर है। क्या किया गया है सर उनको? यूजफुल फॉर यूज लिख सकते हैं। मगर यूज क्यों, फॉर कैसे? हाँ, यूजफुल कहाँ पर? इंसुलेटिंग फायर रेजिस्टेंस। हाँ, और क्यों वो यूजफुल है? क्योंकि उसके ऊपर क्या कोटिंग की गई है? Thermal and dielectric properties. पीटीएफई एंड ईटीएफई की कोटिंग की गई है। आप सबसे पहले एड्रेस कीजिएगा, यहां पर समझिए मैडम, आप भी सर, यहां जी पर आप एड्रेस कीजिएगा कि आप जो चीजें जो इन्वेंशन के फिगर में दी गई है उसको आप एड्रेस कर सके यहां पर। तो आपको सबसे पहले फिगर देखनी थी, और फिगर देखने के बाद ठीक है। वहां पर ये देखना था कि वो 1 2 3 4 है क्या। अगर उसको आप देखेंगे ना, तो फर्स्ट लेयर है पीटीएफई लेयर, सेकंड लेयर है ईटीएफई लेयर, और लास्ट में है माइका टेप। ओ यानी ये वायर था, वो फायर रेजिस्टेंस वायर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के लिए है, फील्ड ऑफ इन्वेंशन वो है। एंड पर्टिकुलरली उसमें क्या यूज होते हैं? पीटीएफई, ईटीएफई एंड माइका टेप। किस पर्पस के लिए? फॉर द फायर रेजिस्टेंस पर्पस। अब लिख पाओगे सर? ट्राई कीजिए लिखना, ये एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए और ट्राई कीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना। मैडम आप क्या लिख पाएंगे? आपने क्या लिखा है अभी तक? सर मैंने तो कॉपी किया है सर, यहाँ से देख के हाँ मैडम, कॉपी भी चलता है। क्या कॉपी किया आपने? स्टेटमेंट कैसे बनाया? The invention relates to fire resistant wire typically comprise a conductor wrapped with inorganic material
तो मुझे लगा कि इन वन और मोर पॉलीमर लेयर्स वहां तक लिखने के बाद आई थॉट आई विल राइट द इन्वेंशन मोर पर्टिकुलरली relates to this one, sir, to minerals excellent thermal and dielectric properties which provide good fire resistant and high insulation values. परफेक्ट है मैडम, आपने प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया इन अ मोर पर्टिकुलर मैनर, करेक्ट? तो वो भी सही है। और मैं जो बता रहा हूं कि आप उनकी कोई एक एडिशनल फीचर को, डिटेल्ड फीचर को एक्सप्लेन कीजिए, दैट इज ऑल्सो राइट। समझ पा रहे हैं सर मेरी बात को? हाँ मैंने हाँ आपको हाँ क्यों इस तरीके से बताया कि आप डिस्क्रिप्शन को पढ़े बिना अपने आप से लिखिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा ये पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर लिखेंगे। उससे अच्छा है आप पहले फिगर को ही फिगर। कर ले, क्या कर ले, डिकोड कर ले। फिगर को डिकोड करेंगे ना तो वो आपको दो पर्पस के लिए काम आएगा। मैडम अभी मुझे कोरिलेट कर पाएंगे मुझसे, मैडम फिगर को अगर डिकोड किया तो सबसे पहले हम उससे इंडिपेंडेंट क्लेम लिख सकते हैं, और फिगर को ही डिकोड करके अगर हम उसी को ही मोर पर्टिकुलर में लिख लें तो हम उससे फील्ड ऑफ इन्वेंशन भी लिख पाएंगे। तो हमें ज्यादा डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ पा रहे हैं सर? आप शायद इंडिपेंडेंट क्लेम आपने नहीं देखा होगा कल, एक बार वीडियो देख लीजिएगा सर, तो आप भी समझ पाएंगे। देखा सर? नहीं नहीं देखना आज आज। आज एक बार देख लीजिएगा सर, 2 hours 15 minute के बाद, तो आप जी समझ जी पाएंगे इसके लिए। तो अब जी सर। आप मीन्स मैडम आप भी और सर आप भी मुझे कल सबमिट करेंगे इसका एक प्रोडक्ट क्लेम, प्रोसेस क्लेम, लिख लीजिए ये सारी चीजें, प्रोडक्ट क्लेम, प्रोसेस क्लेम, टाइटल, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, और एब्स्ट्रैक्ट भी लिखने की कोशिश कर लीजिए। चलिए एब्स्ट्रैक्ट भी। Abstract मुझे मतलब I want to know what actually it has to come, sir. इट हैज, देखिए मैडम उसकी फॉर्मेट सिंपल ही है, ट्रिपल टीपी। पहले तो टाइटल आएगा वहां पर, जो टाइटल है वैसा का वैसा ही लिख लो। फिर टेक्निकल फील्ड आएगा, फिर टेक्निकल एडवांसमेंट आएगा, एंड प्रिंसिपल यूज। अब मुझे बताइए, टाइटल तो आपको पता चल गया यहाँ से, फायर रेसिस्टेंट वायर एंड प्रोसेस, सॉरी इसका जो फायर। टेक्निकल फील्ड है वो आपने अभी जो एकदम जो स्टेटमेंट लिखा फील्ड ऑफ इन्वेंशन में पहली बार, पहला स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं टेक्निकल फील्ड में। यस सर। अब आती है टेक्निकल एडवांसमेंट की बारी। हमारे घर में जो वायर होता है, यहाँ पर आपको क्या नई चीज दिखी वहां पर? सर फायर रेसिस्टेंट है सर, लाइक हाँ फायर रेजिस्टेंस, मगर क्यों है? बिकॉज ऑफ द टेक्निकल मटेरियल, एडवांस क्यों है? बिकॉज ऑफ द एडवांस मटेरियल यूज्ड। बिकॉज ऑफ द एडवांस मटेरियल। हाँ तो वो एडवांस मटेरियल को इंट्रोड्यूस कीजिए, और ऐसे ही लिखिए, द टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ द फायर रेजिस्टेंस वायर इज सो एंड सो। फिर द प्रिंसिपल यूज ऑफ द फायर रेजिस्टेंस वायर इज इन होम इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, in hotel electrical wirings, whenever high voltage current supply required and the situation in which high voltage current supply is given in that particular condition, such kind of wirings are principally used or it is preferably used। नहीं लिख सकते हैं? कोई डाउट है अभी? ट्राई कीजिए, कल मैं बताऊंगा अभी, मगर यही लिखना होता है, उसमें कोई चीज ज्यादा नहीं होती है। सर एनी डाउट? प्रिंसिपल यूज इज नो बेसिकली नो नो कहाँ सर। पे यूज की जाती है? हाँ जी, दिस प्रिंसिपल। प्रोडक्ट वेयर इट इज यूज्ड फॉर। हाँ मेनली किसके लिए बनाया गया है? ओके सर। टाइटल, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड यूजेस, यूज, दिस ये 4 थिंग्स। इनको पकड़ लीजिए और चारों स्टेटमेंट से एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए। यस सर। गौरव सर, क्या क्या यस सर, चीजें विद इन सबमिट करनी है? पहले तो आप पहला पेज बनाएंगे प्रोडक्ट। जिस तरीके से हमने बनाया था वैसे ही, फॉर्म नंबर 2 लिख के, उसमें क्या आ गया? टाइटल आ गया, टाइटल, फिर प्रीएम्बल आ गया, फिर हम फील्ड ऑफ इन्वेंशन पे आ गए। फील्ड ऑफ इन्वेंशन के बाद हमने
क्लेम्स लिख रहे हैं, प्रोसेस क्लेम भी और प्रोडक्ट क्लेम भी। सर फर्स्ट कौन सा क्लेम आएगा सर? प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट क्लेम भी लिखना है और प्रोसेस इंडिपेंडेंट क्लेम भी लिखना है। ओके सर। फिर उसके दो डिपेंडेंट क्लेम भी लिखने हैं और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। ओके फिर से कहूं या समझ में आ गया चीजें? नहीं, हाँ सर, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, आधा घंटा लगेगा आपको। मैडम हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लेंगे, आपको 1 आवर लगेगा आज, और कुछ नहीं है सर ज्यादा। मगर ये वंस फॉर ऑल प्रैक्टिस है, ये एक बार आपका दिमाग चलने लगा फिर आपको ड्राफ्टिंग ऐसे लगेगी कि ड्राफ्टिंग बड़ी बात नहीं है। So that is because of that video, sir. Gaurav sir, that video is very good. You watch that video. No, it explains yes, everything. ma'am. Yes, ma'am. Because of that Yes, ma'am. video, Yes, I ma'am. learned. Now, just night में Yeah, today you watch. night out करना पड़ेगा। Yeah. Yeah. एनीथिंग एल्स मैडम? तो हम यहाँ पर रुके और कल इतनी एक्सरसाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। करेक्ट? हैव अ नाइस डे। जय हिंद। Today by the end of the day, I will finish and I आप जैसे ही लिख लेते हैं आप मुझे भेज दीजिए वो फोटो निकाल के। will. जी sir. आई विल एवेल्युएट। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। Thank you. जय Thank you, जिनेंद्र। sir. Yes, sir. जय श्री Thank you. कृष्ण। Thank you. Thank you.